प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के द्वारा एनवायरमेंटल और बायोमेडिकल सैंपल्स के वेरिफिकेशन के लिए बने इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डिजिग्नेटेड लेबोरेटरीज के हिस्से के रूप में भी इसे एक स्थान प्राप्त हुआ है और इस भागीदारी से डीआरडीए को केमिकल वारफेयर एजेंट्स तथा उनके विक्टिम्स की फॉरेंसिक व ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार का स्टेटस राष्ट्र को इंटरनेशनल लेवल पर एक एज देता है और किसी ऐसी घटना की स्थिति में इंटरनेशनल ट्रीटी का कंप्लायंस करने में डिसाइसिव रोल प्ले करने का भी अवसर प्रदान करता है। And with that, we're taking a short break here, but there's more coming up. Welcome back now. Sports news. B-Sai Praneeth suffered a 3-game loss to world number 9 Anthony Sinisuka in the quarterfinals to draw curtains on India's campaign at the China Open. Almost a month after dispatching the Indonesian en route his historic World Championships bronze at Basel, world number 15 Praneeth went down to the same opponent 21-16, 6-21, 16-21 in 55 minutes to end his campaign. And Mason Greenwood scored his first senior goal for Manchester United as Ole Gunnar sides recorded a 1-0 win over Astana in the Europa League Group L opener on Thursday night. The Red Devils struggled to open up an ultra-defensive Astana for long periods of the contest, but Greenwood came out with a brilliant finish in the 73rd minute to decide the clash. At 17 years and 353 days, the Englishman is United's youngest ever scorer in Europe, taking the crown previously held by Marcus Rashford, who netted twice on his Europa League debut in February 2016. Greenwood's goal was the highlight on a scrappy night for United, who were far from convincing against a team that had come through qualifying to make the group stage. And with that, it's a wrap on this edition of the news. Thanks for being with us. अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कितनी मिली-जुली बातें हैं। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। 125 करोड़ देशवासियों ने ठान ली है कि अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन अब लाए हैं डीडी साइंस, 1 घंटा विज्ञान के नाम।
हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक एक नए युग की शुरुआत। डीडी साइंस, हम देंगे हर सवाल का जवाब। जी हाँ, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, भारत सरकार का एक नायाब कदम। दिन भर की सुर्खियों पर नजर, देश दुनिया की 100 बड़ी खबर सिर्फ 30 मिनट में। एक्सप्रेस न्यूज, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। जल है तो कल है। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा। पानी बचाना है, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। All the world's a stage, and all men and women are merely players. When William Shakespeare juxtaposes theatre with life, we agree that art reflects life in more ways than one. So we decided to head to the 5th International Ramayana Festival, where young artists from around the world came together to perform their versions of one of the most famous Indian epics. Groups from 8 countries including Thailand, Trinidad and Tobago, Cambodia, Indonesia, Bangladesh, Fiji and Sri Lanka participated in the event that saw young actors from across Southeast Asia take part. The fest celebrates not just theatre and its magic, but it also serves as an opportunity for youth from across Southeast Asia to witness each other's cultures and get to know more about different people. I caught up with young artists from Fiji, and here's what they had to say. Well, one of the groups that is performing today is the group which has come from Fiji, and they are also performing their version of Ramayana. Let's try and talk to them and understand why they think it's important. आप कौन सा character play कर रही हैं?
मैं सीता का रोल निभा रही हूँ। And Ramayan, मतलब why do you think it's important, the epic and the character? वेल फीजी में रामायण की बहुत ही प्राथमिकता है क्योंकि आवर सोसाइटी रिवॉल्व्स अराउंड रामायण। तो हम जो भी कुछ करते हैं रामायण के हिसाब से करते हैं। आज भी हम हिंदी बोलते हैं तो रामायण के ही कारण से बोलते हैं। हमारे जो सभ्यता अभी तक जो बचाई है वो भी सिर्फ रामायण के ही माध्यम से है। I think that's very interesting and that was something wonderful to see that all of them are very comfortable in Hindi. और जैसे कि आपने बताया कि रामायण की वजह से ये लोग हिंदी बोल रहे हैं। आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? मैं शबरी हूँ। अच्छा, और रामायण में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, which one is your favorite? माँ सीता। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव वो कैसे परिश्रम से गुजरी, it's all really amazing. Yes, and it symbolizes a lot of strength that a woman can symbolize. You agree with it? There are very strong women characters in Indian epics, and you've got your own version in Fiji. कुछ उसके बारे में बताइए, रामायण का वर्जन इंडियन वर्जन से कैसे डिफरेंट है वहाँ पे फिजी में? Well, फिजी में रामायण हम रोज प्ले ही करते हैं। हर ट्यूसडे को हमारे घर पे रामायण होता है। तो वहाँ पर जो हमारे गिरमेटियस गए थे वो उनका वर्जन ऑफ रामायण रहता है और वो सब ऐसा रहता है। आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करें? मैं गिरमेटिया की वाइफ हूँ। ऑल राइट। सर आप हाँ, मैं रावण। और जैसे आप पूछ रही थी कि हमारा वहाँ पर थिएटर, एक्चुअली वी डोंट हैव एनी एकेडमी। हमारे पास वहाँ पर एक स्पेसिफिक एकेडमी नहीं है जहाँ पर हम ये रामायण का ये जो नाटक सीखते हैं। तो हम एक छोटे इलाके से, हमारे फिजी देश में एक छोटे से इलाके के कुछ ही घरें जुड़कर एक मंडली चलाती है। ऐसा वहाँ पर बहुत सारे मंडलियाँ हैं। तो हम एक छोटे मंडली से हैं और हम खुद ही अपना टाइम डिवोट कर ये सब सीखते हैं। और हाँ, आज हम यहाँ पर हैं। और you're playing Ravan, and Ravan is a character which has different versions in different countries. कहीं वो evil बताए गए हैं, कहीं पे उन्हें worship किया जाता है, कहीं पे in India he is of course a symbol of evil, but we also know that he is a character which has a lot of intelligence, a lot of wisdom. Fiji में कैसे symbolize किया जाता है रावण को? ये वेरी मच सिमिलर। जैसे यहाँ पे आप बोल रही हैं कि इंडिया में रावण दो वेरी पावरफुल, बट ही यूजेस हिज नॉलेज ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ। तो वही सिंबल है हमारा रावण का भी, कि रावण एक उनसे गलत मगर a person with a lot of power, with a lot of knowledge, but used his knowledge wrongly actually. Yeah. आजकल जहाँ भी देखो लोग तो सरकार के सफाई अभियान के बारे में ही बात करते दिखते हैं, लेकिन क्या ये अभियान मीडिया के लिए है? नहीं। तो क्या ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए है? नहीं। फिर हम सब ये सफाई कर क्यों रहे हैं? With the rise of theatre enthusiasts in India over the past few years, the art form has gained importance among youth much more now, even though it has been a part of our culture from the inception of the society system. यहाँ लिखो यो थूकना है, थूकना है, हरे हरे पान का कमाल, दिल्ली का हर कोना लाल लाल। अरे ये तो अनसिविलाइज लोग हैं, हम इनसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है कि पढ़े लिखे लोग इस देश को साफ रखते हैं? Just because you're educated doesn't mean that you value the importance of cleanliness. एक दूर की मामी, तो इसलिए हमारी मशीन नंबर 2 का नाम है एक रिश्तेदार का इतना भाग, जिसके पर्सनल इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। Whether it was India's Sanskrit theatre or the plays of Greeks and Romans, youth are using it now to rebel, to express, and to keep alive the art form. With theatre as a catalyst and Ramayana as the binding factor, youngsters coming together proved as a fillip to strengthening relations between countries of the Southeast Asian region.
also, talked about youngsters taking up theatre. You are young girls. You have taken to acting, to plays. What motivated you to take up theatre in the first place? Well, actually, what motivated us was the help of our Guruji. He's our leader as well. He motivated each and every one of us. We have Gurukul sessions on Sundays. वो हमें रामायण पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, तो वो हमें encourage करते हैं. Why did you take up acting as one of your career options? It's the same thing, I guess, because हम उसके मामा बोलते हैं, वो हमारे गुरु है, तो वो हमें रामायण के बारे में हर संडे को पढ़ाते हैं. और क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते हैं, what are the lessons that you guys have learned from these epics? Because in India and even in Fiji, like you told us, it's not just merely a book. It is life's teachings. It is something that you follow in your life, the guidelines that each book has given, whether it is Ramayana or Mahabharata. What is that one thing that you have learned from it? सच का भला होता है. और And what would you, as a youngster, what do you see in Ramayana for youngsters? रामायण को हमें रोज़ अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि अभी का जो जीवन है वो सिर्फ फ़ोन और फेसबुक और उस सब से होता है, पर ये एक जीवन है कि हम रामायण का कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं. Right, like she said, this is a world of phones, of technology, of a fast life that all of us are leading. But here there are youngsters who are still taking up to acting, theatre, and taking up Ramayana to play and come to India and act it out for all of us. What is that एक lesson जो आपने सीखा है? And first of all, why did you take up theatre as a young girl? Initially, मेरा कोई plans नहीं था theatre take up करने के लिए, but it was just the circumstances. Like मैं एक मंडली में पली बड़ी थी, छोटी सी वही रामायण के साथ साथ वही से सीखते फिर वक्त चला जाता है, तो उसमें हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो पार्ट हो जाता है अपना लाइफस्टाइल का. तो बस एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी मंडली जो है पिछले 25 ईयर्स से रामलीला करते आए हैं, तो उनको सीता नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं बस आ गई. An eye on big news of the day, with a close watch on developing stories, news of the nation, world, sports, markets and entertainment in a new style. Incisive analysis of the big stories by DD News reporters and experts. Watch Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. only on DD News. आम लोगों की खास कहानियां. गुड न्यूज आपका जो कार्यक्रम एक चलता है, सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है. बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं. दूरदर्शन की रीच इतनी ज्यादा है, बहुत लोगों ने शायद इसको देखा. बनिए गुड न्यूज इंडिया का हिस्सा. भेजिए अनकही प्रेरक कहानियां. गुड न्यूज इंडिया, सिर्फ डीडी न्यूज पर. देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज. पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर. इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है. सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया. जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस. दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है. इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है. अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा. दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची. जीरम घाटी से होती हुई ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक. We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर.
गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर को दिल्ली के कमानी सभागार में 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विश्व की सभी समस्याओं का हल रामायण में दिया गया है। इस उत्सव का आयोजन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किया गया था, जिसके पहले संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस समय इस महोत्सव में 7 देशों ने हिस्सा लिया था। इस बार इस महोत्सव में थाईलैंड, त्रिनिदाद, टोबैगो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और फिजी समेत कुल 8 देश हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा। सभी 8 देशों के कलाकारों को लखनऊ और पुणे में भी प्रदर्शन करना होगा। उत्सव के बाद ये सभी अयोध्या भी जाएंगे। यह महोत्सव रामायण महाकाव्य के विभिन्न संस्करणों को देखने का मौका देता है, जिसे पारंपरिक रूप से हर देश द्वारा अपने तरीके से प्रसारित किया गया है। आज तो मैं तुम्हारी सभा से लज्जित होकर जा रहा हूँ, पर याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारी सीता को ले जाकर अपने राज दरबार की शोभा बढ़ाऊंगा, शोभा बढ़ाऊंगा। Ramayana is an important influence on Indian culture. It embodies the social religious ideals of many inside as well as outside India. तुम्हारे भैया बड़े अधीन स्वर में बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी इनकी पुकार? This is visible from the fact that as many as 17 countries have been a part of International Ramayana Festival. Ramayana is one such scripture that has transcended all boundaries known to humankind. It has reached a global audience, and consequently we not just see Indian version but also different countries showing their own versions of Ramayana like Cambodia, Fiji, Thailand, Indonesia and Sri Lanka. लगी है भूख, पेट इस कदर सता रही है, मारे भूख के कलेजा बाहर आ रही है। Talking about different versions, Indian Ramayana is the original Ramayana authored by poet Valmiki. It holds influence from Hinduism, whereas Ramayana of Southeast Asian countries are not just influenced by Hinduism but also Buddhism. स्मरण है, मैंने कहा था कि एक ना एक दिन तुझे ले जाकर अपने राज दरबार की सभा बढ़ाऊंगा, सभा बढ़ाऊंगा। Ramayana no doubt has had a huge impact in shaping the lives of people in Fiji. That's why there are more than 2,000 Ramayana Mandalis operating there. In Bangladesh, Ramayana is the most popular performing art forms. At least 8 versions of Ramayana, mostly folklore-based performances, are enacted in the countryside of Bangladesh. Kushtiya Ramayan Gan, Ram Kirtan, Ram Mangal, Ram Jatra and Kushan Gan are some of them. आम लोगों की खास कहानियाँ। गुड न्यूज आपका जो कार्यक्रम एक चलता है, सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। दूरदर्शन की रीच इतनी ज्यादा है, बहुत लोगों ने शायद इसको देखा। बनिए गुड न्यूज इंडिया का हिस्सा। भेजिए अनकही प्रेरक कहानियाँ। गुड न्यूज इंडिया सिर्फ डीडी न्यूज पर। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है।
इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होते हुए ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। An eye on big news of the day, with a close watch on developing stories, news of the nation, world, sports, markets and entertainment in a new style. Incisive analysis of the big stories by DD News reporters and experts. Watch Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. only on DD News. And when it comes to people-to-people ties, who better than the future of our countries to lead the way? शोभा